Good morning, students. Beta, we have completed our first chapter and two poems, right? Now we will move on to our next chapter, which is the Narayanpur incident. This chapter is written by Shashi Deshpande. Shashi Deshpande is an Indian novelist. It means she is well known for writing novels. She is recipient of Sahitya Academy Award, which is given in the field of literature, and she won it in 1990 for novel That Long Silence. She has also been awarded with Padma Shri, and Padma Shri is the fourth highest civilian award in India, and she was awarded it in 2009. She has written four children's books, a number of short stories, and nine novels. Now about the chapter, the Narayanpur incident. The whole scenario of this chapter is set up during the era of independence when we Indians were fighting for our independence. And you have had already read about Quit India movement called by Mahatma Gandhi in 1942, right? You have had read it in your history books. So this story is about ordinary youngsters, like Mohan, Babu, and Manju. These are the characters of the story, and many more like them. These are just the characters. The youngsters are given the name, who are caught up in the struggle for independence, and for the love of their country, they perform extraordinary things. Now, we will proceed with the chapter. 8th August 1942. The Quit India movement begins. Babu and Manju suddenly find themselves part of all this when their schools close down and their father is put behind bars. Now, Quit India movement was started in August, and there are two kids, Babu and Manju, who are suddenly brought up in all this freedom struggle, and this happens when their school is closed down due to tension, due to riots which are happening all around the country. And as their father was also part of freedom struggle, he was put behind bars. So more than those who were indirectly affected, these two kids were directly affected by this struggle, as their own father was put behind bars because of this struggle. Their brother Mohan becomes involved in the movement, and the rest of the family moves to the small town of Narayanpur. Now, when their father is put behind bars, the elder brother of these two kids also filled with the spirit of independence, and he also gets involved in the movement, and just for the sake of safety, the rest of the family shifts from the town to Narayanpur. But now Mohan has turned up in Narayanpur with his friend Suman, and the Quit India movement has gained momentum. Momentum means स्पीड पकड़ना, किसी चीज़ में तेज़ी आना. अब जब मोहन क्विट इंडिया मूवमेंट का पार्ट हो गया है और उसकी फैमिली शिफ्ट हो जाती है एक छोटे से नारायणपुर नाम के गांव में, तभी क्या होता है कि मोहन अचानक से नारायणपुर पहुंच जाता है अपनी एक फ्रेंड के साथ जिसका नाम सुमन है. और ये सब तब होता है जब क्विट इंडिया मूवमेंट, ये जो आंदोलन है, इसमें तेज़ी आ चुकी होती है. Babu decides to watch a procession that Mohan is taking part in and takes Manju with him. अब मोहन नारायणपुर क्यों आया है? क्योंकि पूरे भारतवर्ष में आंदोलन चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, धरने चल रहे हैं, जुलूस चल रहे हैं,
तो नारायणपुर भी इससे अछूता नहीं रह गया है। जो कुछ फ्रीडम फाइटर्स का ग्रुप है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो नारायणपुर में शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, और मोहन भी उस छोटे से ग्रुप का हिस्सा है। अब जब बाबू यानी मोहन के छोटे भाई को ये बात पता चलती है कि मोहन नारायणपुर में आ रहा है आंदोलन के लिए, तो वो ये ठान लेता है कि वो जिस प्रोसेशन में, जिस रैली में मोहन पार्ट ले रहा है, उसको वो ज़रूर देखेगा, और वो अपने साथ अपनी बहन मंजू को भी लेके जाता है। Their mother does not know about their plan, so the children leave the key to their house with their neighbor रमाबाई। अब दोनों बच्चे बाबू और मंजू ये प्लान बना लेते हैं कि वो प्रोसेशन देखने, जुलूस देखने जाएंगे, पर अपनी माँ को ये बात नहीं बताते, क्योंकि एक बेटा ऑलरेडी प्रोसेशन में था और हिज लाइफ वॉज ऑलरेडी इन डेंजर। सो वो नहीं चाहती थी कि उसके दोनों छोटे बच्चे भी इन चीज़ों से इफ़ेक्ट हो। तो अपनी माँ के गुस्से से, अपनी माँ की डांट से बचने के लिए ये दोनों बच्चे डिसाइड करते हैं कि अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताएंगे, और इसलिए ये अपनी घर की चाबी अपने पड़ोस में रहने वाली रमाबाई के पास छोड़ के प्रोसेशन देखने के लिए चले जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि होता क्या है। Now, said Manju impatiently, tell me where we are going. अब बाबू मंजू को कहीं ले जा रहा है, और मंजू impatiently, उससे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है, और वो कहती है, मुझे अभी बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। To watch a procession, walk fast, we may be late. बाबू इस पर रिप्लाई करता है, प्रोसेशन देखने, जुलूस देखने, जल्दी चलो वरना हम लेट हो सकते हैं। What procession? Whose procession? Where? अब मंजू फिर से सवाल पूछती है, क्या, कौन सा जुलूस, कैसा जुलूस, कौन निकाल रहा है जुलूस, कहाँ चलना है? You sound just like रमाबाई, said बाबू। अब इतने सारे क्वेश्चंस जब मंजू ने किए तो बाबू इरिटेट हो गया, और उसने कहा, तुम बिल्कुल हमारी पड़ोसी रमाबाई की तरह हो, इतने सारे क्वेश्चंस करती हो। Did she give you a quick lesson? क्या तुम जब चाबी देने गई थी तो उसने तुम्हें सिखा के भेजा था कि पूरे रास्ते बस क्वेश्चन करती रहना? ओह, बी क्वाइट अबाउट रमाबाई, टेल मी बाबू व्हाट प्रोसेशन। अब मंजू गुस्से में पूछती है, तुम अब रमाबाई के बारे में बात करना छोड़ो और मुझे बताओ कि कौन सा प्रोसेशन। द कॉलेज स्टूडेंट्स आर टेकिंग आउट अ प्रोसेशन फ्रॉम देयर कॉलेज टू द कलेक्टर्स ऑफिस। Mohan told me we could watch. He says it's going to be peaceful. अब मंजू के इस क्वेश्चन पे कि आखिर प्रोसेशन है किस चीज़ का, बाबू आंसर देता है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स एक जुलूस निकाल रहे हैं अपने कॉलेज से कलेक्टर यानी डीएम, ठीक है, डीएम के ऑफिस तक। और बाबू ने कहा कि उसके बड़े भाई मोहन ने कहा है हम वो जुलूस देख सकते हैं, क्योंकि पूरा जो जुलूस निकलेगा वो बहुत ही शांतिपूर्ण होगा, कोई भी वायलेंस उसमें नहीं होगी। There were already some people lining the roads. Manju and Babu found a good spot almost opposite the gate of the collector's compound. They had to wait for some time. अब जहाँ से, जिस रास्ते से प्रोसेशन निकलने वाला था, उसके दोनों तरफ अच्छी खासी भीड़ हो गई थी। लोगों ने सड़क के दोनों तरफ अच्छी खासी लाइन में, भीड़ में लोग खड़े थे। उसी में मंजू और बाबू को भी एक बहुत अच्छी जगह मिल गई जहाँ से वो सब कुछ साफ साफ देख सकते थे। और वह जगह कौन सी थी? कलेक्टर के ऑफिस के जस्ट सामने की जगह पर। प्रोसेशन देखने के लिए उन्हें कुछ टाइम वेट करना था। Soon they heard the magical words, "They are coming, they are coming." अब जो भीड़ इकट्ठा थी वो काफ़ी दूर से इकट्ठा थी, तो जैसे ही प्रोसेशन आने लगा तो लोगों में हलचल शुरू हो गई
और बाबू और मंजू को जल्दी ही सुनाई देने लगा, वो आ रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं। The children, like others, rushed out. Policemen appeared all along the road. और भीड़, जिस तरह सेलिब्रिटीज़ को देख के भीड़ बेकाबू हो जाती है, उसी तरह इस प्रोसेशन को देख के जो लोग प्रोसेशन देखने आए थे वो उनसे मिलने की इच्छा जताने लगे और जो उनकी बाउंड्रीज़ थी उससे बाहर निकलने लगे। और मौका देख के ये जो बच्चे थे बाबू और मंजू, ये भी बाहर निकलने लगे। अब जब पुलिस वालों ने देखा कि हालत कंट्रोल में नहीं आ रही है तो पूरी रोड पे पुलिस वाले आ गए। सम ऑफ देम वॉक्ड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, सम बाय देयर साइड्स, बट द स्टूडेंट्स मार्च्ड एज इफ द पुलिस डिडंट एग्जिस्ट। अब कुछ पुलिस वाले बच्चों के सामने आ गए, कुछ उनके अगल बगल आ गए, पर फिर भी स्टूडेंट्स शांतिपूर्वक ऐसे मार्च कर रहे थे जैसे कि पुलिस है ही नहीं। They walked in complete silence. There were no slogans, no shouts, just the shuffle of feet and a low murmur from the watching crowd. बिल्कुल शांति से प्रोसेशन जा रहा था, कोई भी नारे नहीं लगा रहा था। स्लोगन्स मतलब नारे, कोई भी नारे नहीं लगा रहा था, कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा था, बस सबके कदमों की आवाज़ आ रही थी और जो भीड़ उन्हें देखने आई थी उनके बोलने की आवाज़ आ रही थी। Children, just give these 8 paragraphs a quick glance, revise it. Again, if you have any doubt, you can ask.